Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in the last lecture we discussed uh, cause and effect relationship in the sentence. Now we are taking some example to clarify our previous lecture. हमारे पास examples हैं. The first one is save money, buy a house. In this example, the save money is cause and buy house is the result of save money. And the second example, eat too much. This is cause and the effect is get fat. Third example is study law and its result is become a liar. Fourth example is stay out in the sun and its result is get a sunburn. Now we try to change these examples into the sentences. Here we have they saved money for more than 1 year, so now they are planning to buy a house. So this is transitional device, conjunction, connecting word. Whereas the result is they are planning to buy a house. Mira used too much greasy food. This is cause. As a result, she got fat. As a result, connecting word, she got fat. This is result. This is effect. He studied law. This is cause. Therefore, he became a liar. This is result. The boy stayed out in the sun too much. Consequently, they got a sunburn. They got a sunburn. This is result. Consequently, this is connecting device. Whereas the first part is the cause of the sentence. And the next example, lack of proteins in body may cause mental retardation. Mental retardation is the result, whereas the reason is, the cause is lack of protein. Low levels of choline in the body, this is cause, can give rise to high blood pressure. High blood pressure, this is result, can give rise to. This is connecting device, connecting words. Next example is that scurvy is a disease. Scurvy एक बीमारी है caused by lack of vitamin C. Vitamin C की कमी की वजह से होती है. Lack of vitamin C, this is cause, and the result is scurvy. I have another example that scurvy causes death. Here, death is the result and the cause is scurvy. Whereas in the given example, scurvy is a disease. Here, this is result and the cause lack of vitamin C. Lack of vitamin C is the cause. Whereas in other sentence, which I am going to tell you, scurvy causes death. Here, scurvy is cause. Scurvy is a disease that causes death. Death is the result. Economic instability stems from over expenditure on war. जंगों पर ज़्यादा खर्च करना, इस वजह से माशी अदम इस्तेहकाम आ जाता है. तो जंगों पर ज़्यादा खर्च करना, ये काज माशी अदम इस्तेहकाम, रिजल्ट.
Lack of iodine cause can result in deafness. बहरापन हो जाता है. This is result, effect. If children are undernourished, cause consequently they will have decreased learning ability. लिहाजा लर्निंग एबिलिटी उनकी कम हो जाती है. दिस इज रिजल्ट. फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू मेंटेनिंग फिटनेस. फिजिकल एक्टिविटी जो है उसकी वजह से फिटनेस मेंटेन हो जाती है. फिटनेस मेंटेन होना, दिस इज रिजल्ट. द वार्म एयर राइजेज अबव द सरफेस ऑफ द सी. सूरज की सतह समंदर की सतह से गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ काज है. रिजल्ट क्या है? दस क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. प्रेशर, दबाव कम हो जाता है. दिस इज रिजल्ट. तो यूं दरमियान में उसने जो बोल्ड में यूज़ कर रखे हैं, ये आपको मालूम है कनेक्टिंग वर्ड्स हैं. नेक्स्ट है तलहा ओवर स्लैप्ड सो मिस्ड मीटिंग. लिहाजा मीटिंग मिस कर दी उसने. तलहा ओवर स्लैप्ड, therefore he could not participate in the meeting. Talha overslept, thus he was late for the first presentation. तो यूँ मुख्तलिफ उसने काज सेम लिखी है और आगे कनेक्टिंग वर्ड्स को चेंज करते हुए डिफरेंट इफेक्ट्स उसके लिखे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है ताहिरा ओवरएट एज ए रिजल्ट शी गेन वेट. तो एक स्टेटमेंट आई. नेक्स्ट स्टेटमेंट Tahira overate. As consequence, she had indigestion. बदहजमी हो गई. Tahira overate. Resultantly, she vomited. उसको उल्टियाँ लग गई. तो यूँ मुख्तलिफ रिजल्ट्स लिखे हैं और दरमियान में मुख्तलिफ कनेक्टिंग डिवाइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ किए उसने. नेक्स्ट है the shirt has shrunk because the material was of poor quality. The shirt has shrunk as you have put it in hot water. तो यूँ दो इफेक्ट लिखे उसने. शर्ट का सुकड़ जाना, वजह क्या थी? मटेरियल का पुअर होना. शर्ट का सुकड़ जाना, वजह क्या थी? गर्म पानी में उसको डाल देना. तो यूँ एक ही रिजल्ट है, वजूहात मुख्तलिफ हैं. पहले क्या था? पहले उसने जो एग्जाम्पल दी थी, यहाँ पर वजूहात काजिज़ सेम थे और उसके इफ़ेक्ट मुख्तलिफ उसने निकाले. तो यहाँ पर उसने इफ़ेक्ट सेम कर दिया, काजेज़ मुख्तलिफ बयान कर दिए और दरमियान में डिफरेंट उसने मुख्तलिफ वर्ड कनेक्टिंग डिवाइस यूज़ किए हैं. यू हैव पुअर ग्रेड सिंस यू आर मोस्टली एब्सेंट. यू हैव पुअर ग्रेड, दिस इज इफेक्ट रिजल्ट. यू हैव गॉट पुअर ग्रेड्स फॉर द रीज़न यू डिड नॉट स्टडी वेल. तो यूँ इफेक्ट सेम है दोनों में और आगे उसकी काज चेंज कर दी गई है. तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज हमारे पास. एक्सरसाइज नंबर 1. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसने काज बयान की है और आगे इफ़ेक्ट आपसे पूछता है कि इफ़ेक्ट क्या होगा. इधर कॉलेज बस इज़ लेट, कॉलेज बस लेट हो जाती है तो हम अपना पहली क्लास मिस कर देंगे. विल मिस आवर फर्स्ट क्लास. तो इस तरह आपने, ये आपका होमवर्क है कि आपने आगे से इसको फिलअप करना है. आगे इसकी रीज़न आगे इसका रिज़ल्ट बयान करना है बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग डिवाइसेस. तो इस तरह ये पहली एक्सरसाइज है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई हैं, वो काज हैं या इफ़ेक्ट हैं, ये चीज़ आपने बतानी है. द रोड वर आईसी, रोड आईसी था. देयर वर मैनी एक्सीडेंट्स, बहुत से एक्सीडेंट्स हुए. तो रोड आईसी होना काज है, एक्सीडेंट्स का होना ये इफ़ेक्ट है. जलील स्टॉप्ड स्मोकिंग सिगरेट्स.
आगे है द प्राइसेस ऑफ सिगरेट्स वेंट अप। तो आपने इसको देखना है काज इसमें कौन सी है, इफ़ेक्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं, इनको आपने देखना है कि कौन कौन सी काज हैं, कौन कौन सी इसमें इफ़ेक्ट है। तो नेक्स्ट है कि जो रिज़ल्ट है, जो इफ़ेक्ट है, अंडरलाइन द इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट। रिज़ल्ट को आपने अंडरलाइन करना है, ये यहाँ पर बताया गया है एक्सरसाइज नंबर 3 में। द फनी जोक्स दैट सईद टोल्ड, सईद ने जो फनी जोक्स सुनाए हमें, मेड अस लाफ आउट लाउड, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हंसी आई, बहुत ज़्यादा कह कहे लगाए। तो ये रिज़ल्ट हुआ, कह कहे लगाना। तो इसको आपने अंडरलाइन करना है। वजह क्या थी? फनी जोक्स। तो इसको आपने यहाँ देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें अंडरलाइन है, सॉरी किन किन को अंडरलाइन किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें रिजल्ट इफेक्ट आ रही हैं। तो ये आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट आपकी। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4। यहाँ पर डिफरेंट जुमले स्टेटमेंट आपके सामने दी गई हैं। तो वहाँ पर कहता है कि काज और इफ़ेक्ट्स को अलग अलग कॉलम में लिखना है, काज और इफ़ेक्ट को सेपरेट करना है अलग अलग कॉलम में लिखकर। द कॉमेडी ड्रामा अतिका ओडो वाज नॉट सक्सेसफुल, वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। देयरफॉर द प्रोड्यूसर डिसाइडेड नॉट टू मेक ए सीक्वल, लिहाजा प्रोड्यूसर ने इसका सीक्वल बनाने का फैसला न किया। तो कॉमेडी ड्रामा जो था वो सक्सेसफुल नहीं था। सक्सेसफुल ना होना ये काज बनी। इसके नतीजे में रिजल्ट क्या निकला? प्रोड्यूसर ने सीक्वल बनाने से का फैसला ना लिया। सीक्वल कहते हैं एक ड्रामे के बाद उसी ड्रामे से इंटरलिंक्ड, उसका यूँ कह लें जैसे आजकल वो आर्टिकल ड्रामा चला हुआ है, उसका सीज़न 1 सीज़न 2, तो ये सीज़न 2 जो है वो सीक्वल है सीज़न 1 का, सीज़न 3 सीक्वल है सीज़न 2 का, सीज़न 4 सीक्वल है सीज़न 3 का। तो यूँ एक ड्रामे के बाद उसी किरदारों पर, उसी कहानी पर मुश्तमिल उसी कहानी को आगे लेकर चलना, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वल। तो सीक्वल बनाने का फैसला उसने ना किया, ये रिज़ल्ट था। और काज क्या थी? क्योंकि वो ड्रामा सक्सेसफुल ना रहा। तो यूँ ये आपने यहाँ पर असाइनमेंट आपकी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें काज हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसका रिज़ल्ट है, इफ़ेक्ट है। तो ये चीज़ें आपने तलाश करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। ये आपके सामने दिया भी गया है, उसको कैसे आपने इसको करना है एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग सुटेबल इफेक्ट। मुनासिब इफेक्ट लिखने हैं, उनके रिजल्ट लिखने हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास रकम नहीं थी। एज ए रिजल्ट आई वुड नॉट बी एबल टू विजिट माई पेरेंट्स इन कराची, जिसके नतीजे में मैं कराची ना जा सका, नहीं जा सकूँगा। तो कराची ना जाना ये रिज़ल्ट है। काज क्या है? रकम नहीं है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बारिश की कमी की वजह से फसलें ना हुई, फसलें तबाह हो गई, या मुल्क को खसारा हो गया, किसानों को खसारा हो गया। तो इस तरह आपने इसका रिज़ल्ट मेंशन करना है बाई राइटिंग सुटेबल कनेक्टिंग डिवाइस। तो ये आपने करना है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है। ये एक पैराग्राफ है और ये किस चीज़ के बारे में है? वाई डू सिटीज़ ग्रो? सिटीज़ शहरों की आबादी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है?
तो ये यहाँ पर इस बात पर उसने एक पैराग्राफ दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ के अंदर कहता है कि ये कॉलम बनाए हैं उसने कि अर्बनाइजेशन इन रिसेंट ईयर हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। कहता है कि शहरों में आबादकारी जो है आजकल के सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड वन कैन से दैट पीपल हैव मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन ह्यूज नंबर। और कहता है कि हाथ में हम कह सकते हैं कि लोग देही इलाकों से शहरी इलाकों में बड़ी तादाद में मुंतकिल हो गए हैं। तो लोगों का बड़ी तादाद में मुंतकिल होना, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई थी। नेक्स्ट आगे उसकी काज लिखी हुई है। काज लिखता है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज़ हैपनिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ये माइग्रेशन हो रही है, तो जिसकी वजह से शहरों की आबादी ज़्यादा होगी, ये उसका रिज़ल्ट है। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर पुल्ड टू सिटी आ रहे हैं बिकॉज दे सीक ए बेटर लाइफ स्टाइल, क्योंकि वो एक बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं। बेटर लाइफ स्टाइल चाहना रिज़ल्ट है। पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर पुल्ड टू द सिटी, ये रिज़ल्ट है। और यहाँ पर क्या है, लोगों का शहरी इलाकों की तरफ आना रिज़ल्ट है। वजह क्या है? वजह क्योंकि वो बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने काज और इफ़ेक्ट अलग अलग करना है इन सेंटेंसेस में, ये आपका होमवर्क है। तो इसके अलावा फर्दर और भी आपके सामने पैराग्राफ दिए गए हैं, तो इनको भी आपने देखना है। जितने ज़्यादा हो सके आप इनको देखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें आपकी ग्रिप जो है इसके ऊपर फुल्ली ज़्यादा अच्छी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।